So in the previous lecture, in the last lecture, yesterday, we discussed about chemical properties of alkanes, and in that we covered the first property, that is called substitution reactions. We know that alkanes are less reactive and they undergo reactions only at extreme conditions, high temperature, high pressure, with the help of free radical substitution reactions. In that we have three major examples: halogenation, nitration, and sulfonation reaction. In case of halogenation, we have learned that fluorine reacts violently, explosively. In case of iodine, the reaction is reversible, and that's why we use strong oxidizing agent like nitric acid or iodic acid, which can oxidize the hydrogen iodide formed in the reaction, which is a strong reducing agent. So we are left with only chlorination and bromination. For bromination, always go for the more stable product that we can understand actually with the help of hyperconjugation. Tertiary, then secondary, then primary. In case of chlorination, which is selective as well as reactive, we have the selectivity ratio for the primary, secondary, and tertiary hydrogen of the alkane. For primary hydrogen, we multiply with the number 1, for secondary 3.8, and for tertiary 5, to calculate the proportions of each alkyl halide formed in the reaction. Same in case of nitration, it occurs at very high temperature, and that's why it is also known as vapor phase nitration, VPN. And at high temperature, extreme conditions, high temperature and high pressure, the cleavage of CC bond also takes place along with CH bond, and that's why we have mixtures of different types of nitroalkanes in case of nitration reaction, with the help of cleavage of both CH and CC bonds. For sulfonation, the reaction occurs at high temperature, but the reaction takes place only when the number of carbon atoms is more than 6. If it is less than 6, it's only one example left, that is isobutane, that can undergo sulfonation reaction. Then we started with the oxidation reactions, in which we have 4 major types. Complete oxidation, known as combustion reaction. Then we have incomplete oxidation, known as partial oxidation. Then we have controlled oxidation, and last we have chemical oxidation. In case of complete oxidation, known as combustion reaction, we have formation of CO2, water, and large amount of heat. The process is exothermic in nature. That's why these alkanes are used as fuels. In case of balance कैसे करते हैं? First of all, balance carbon, then hydrogen, last balance oxygen. In case of partial oxidation, partial combustion कैसे को? We have formation of carbon black along with water, and that carbon black ये हम घर पे बनाते हैं, हमारी माँ बनाती है ना, उनको जो काजल बनाती है, कैसे बनाती है? दिया रखती हैं, ऊपर चिमटा रखती हैं। चिमटा क्यों रखती हैं उसके ऊपर? ताकि उसको जो सप्लाई हो ना ऑक्सीजन का, वो कम से कम हो। अब दिया हो गया, इसमें तेल में क्या होता है? इट इज फुल ऑफ हाइड्रोकार्बन। उससे क्या बनेगा? कार्बन बनता है, कार्बन ब्लैक। तो ये हमारी माँ दादी पहले घर पे बना सकती, शायद नहीं बनाती हैं, बनाती हैं। और थर्ड जो को याद करना पड़ेगा, कौन सा? कंट्रोल ऑक्सीडेशन। उसमें अगर हम यूज करते हैं, बताना मैं भूल जाता हूं इसमें क्या है। हाँ, अगर कॉपर हो
523 केल्विन हो और 100 atm हो, तब तो बनता है मिथेनॉल CH3OH। आपके पास अगर मॉलिब्डेनम ऑक्साइड हो तो बनता है फॉर्मल्डिहाइड, ऑल्सो नोन एज मिथेनॉल HCHO अलॉन्ग विद वाटर। और अगर मैंगनीज एसीटेट हो और यूज करें इथेन का कंट्रोल ऑक्सीडेशन, तो इथेन से बनता है इथानोइक एसिड और प्लस में वही वाटर। इसका फोर्थ स्टार्ट करते हैं हम, केमिकल ऑक्सीडेशन। ये भी एक लाइन में आ जाएगा, केमिकल ऑक्सीडेशन भी। केमिकल ऑक्सीडेशन, इसका स्टेटमेंट लिखिए। एल्केन्स हैविंग टर्सरी हाइड्रोजन, ये तभी होगा जब उनके पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक टर्सरी हाइड्रोजन, और एक ही होना चाहिए टर्सरी हाइड्रोजन। फॉर्म करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स, फॉर्म करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स बनाएगा, मतलब फॉर्म करस्पॉन्डिंग alcohols when treated with alkaline KMnO4। ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हम बार बार पढ़ेंगे, +2 में आएगा ये नाम। इसका नाम है पोटाशियम परमैंगनेट। मैं लिख रहा हूं POT फॉर पोटाशियम, पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम परमैंगनेट। रिएक्शन देखिए, आपके पास ये है एल्केन जिसके पास एक टर्सरी हाइड्रोजन है, इसका नाम क्या होगा, आइसो प्रोपाइल, आइसोप्रोपेन नहीं, इसमें ऐसे है ना, ये बताया CH3 और C और इससे अटैच्ड एक H, ब्यूटाइल हो गया, 4 कार्बन का है ना ये, CH3 और एक H। इसको अगर ट्रीट करते हैं किससे, अल्कलाइन KMnO4। कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। और बेटा वो O कहां आता है, कार्बन और H के बीच में, तो अल्कोहल कौन सा बनेगा, वो भी टर्सरी बनेगा ब्यूटाइल। इसका नाम क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका आईपीएस नेमिंग कर सकते हो ना, क्या नाम होना चाहिए, 1 2 3 बोलो, 2-methyl propane 2-ol, 2-methyl propane 2-ol। तो ये केमिकल के साथ में कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, एल्केन से बना रहे हैं अल्कोहल। उस एल्केन के पास टर्सरी हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करना सीक्वेंस में करते हैं, जैसे एनसीईआरटी में से करते हैं। नेक्स्ट है आइसोमेराइजेशन, थर्ड रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन। नाम से क्या लग रहा है,
आइसोमर्स बन रहे हैं। यहां पे हम स्ट्रेट चेन एल्केन्स को ना ब्रांच चेन एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें करें स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन में, और इसमें कैटलिस्ट लेते हैं हम। इसका नाम बता सबको क्या होता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में HCl गैस लेते हैं। ये काम करता है एज ए कैटलिस्ट फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन टू ब्रांच चेन एल्केन्स में। पहले सेंटेंस लिखो इसमें। एल्केन्स ऑन हीटिंग in the presence of एनहाइड्रस AlCl3 रहते हैं। ये एनहाइड्रस क्या होता है बेटा? जहां वाटर मॉलिक्यूल ना हो। ये क्या एक लेविस एसिड, पता आपको? हमने पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है Al के पास। इसके पास लास्ट में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? ऐसे लिखते हैं 2 8 3 3 खुद के हैं, और 3 किससे शेयर कर रहा है? क्लोरीन से। इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए शेयर करने के बाद भी। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है किसी और से, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं पेयर में उन्हें क्या कहते हैं? लेविस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसे क्या कहते हैं? लेविस बेस। ये लेविस एसिड है। एनहाइड्रस मतलब तो वाटर मॉलिक्यूल ना हो, वरना वाटर ही उसको क्या दे देगा? लोन पेयर दे देगा। हमें किसे देना है? एल्केन से देना है, ताकि वो स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन बना सके। एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl गैस। एसिड इसको हेल्प कर रहा है किसमें? कन्वर्ट करने में, बॉन्ड को तोड़ने में, कार्बन कार्बन का बॉन्ड को तोड़ने में। उसमें क्या लेके आ रहा है? पोलराइजेशन, क्योंकि एक पोलर कंपाउंड बनेंगे HCl गैस। HCl गैस undergo isomerization क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म ब्रांच्ड चेन एल्केन। टू फॉर्म ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। एग्जाम्पल देखिएगा। ब्यूटेन का ड्रॉ करना बेटा एक बार। अच्छा, बॉन्ड लाइन ड्रॉ करना, ताकि बॉन्ड लाइन में साथ साथ सीखते रहो। क्या होता है बॉन्ड लाइन ऑफ ब्यूटेन? ड्रॉ कर सकते हैं। ये है बेटा ब्यूटेन। क्या ऐड कर रहे हैं इसमें बताओ? एनहाइड्रस AlCl3, साथ में और क्या है? HCl गैस के फॉर्म में, और हीट कर रहे हैं। हीट करने पे इस कार्बन को यहां पे अटैच करवा दो। इस कार्बन को यहां से ये बॉन्ड तोड़ के, ये CC बॉन्ड तोड़ के ये CC बॉन्ड जोड़ दो। क्या बन जाएगा? कौन सा कंपाउंड है ये? 2-मिथाइल प्रोपेन, या क्या सकते हैं? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन बन रहा है इससे, एन ब्यूटेन से, या आईपीसी कहते हैं सिंपली ब्यूटेन। देखो इसका मैकेनिज्म, हालांकि बुक में नहीं है, इसका प्रोपोज मैकेनिज्म है। देखो ये आपके पास ब्यूटेन है, तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, जो कि एक लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, और हीट करने के बाद ये CC बॉन्ड टूट रहा है, और ये वाला कार्बन ये इलेक्ट्रॉन पेयर साथ लेके किससे बॉन्ड बनाएगा? Al के साथ जाएगा। तो यहां क्या बच गया बेटे? ऐसे लिख सकता हूं, इस पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। नाम क्या इसका?
CH3, CH2, CH2 पॉजिटिव, N प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। क्या है इसका? N प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। साथ में और क्या बन गया? यहां बना AlCl3 है, साथ में क्या आ गया इसका? इसका आया है CH3 नेगेटिव। क्या है? CH3 नेगेटिव। ये कार्बोकेटाइन है ना, जब जब बनता है कार्बोकेटाइन क्या बनेगा? रीअरेंजमेंट। गुड। तो इसमें कौन सा शिफ्ट करोगे? मिथाइल, इसमें H प्रेजेंट है। ऑर्डर क्या है? हाइड्राइड, फिर फिनाइल, फिर मिथाइल या एल्काइल। तो यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट से ये कौन सा बना कार्बोकेटाइन? सेकेंडरी। नाम क्या है इसका? आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। ये क्या था? एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है। अब इसमें क्या अटैच करवा दोगे? ये वाला CH3। अब इस पे क्या अटैच करेगा? ये माइनस में, सरप्लस में ये क्या था? CH3 नेगेटिव। क्या बन जाएगा? आइसोब्यूटेन। एंड द कैटलिस्ट AlCl3 इज रीजनरेटेड। माइनस में AlCl भी कर सकते हो या नहीं कर दो। साथ में और क्या बन गया? प्लस में AlCl। ठीक है। ये इसका प्रोपोज्ड मैकेनिज्म है जो कुछ बुक्स में गिवन है। एनसीईआरटी में बस ये एग्जांपल दे रखा है, आप एक दो और प्रैक्टिस कर लो एग्जांपल में। इसको फर्स्ट लिख लो। टू मिथाइल प्रोपेन है ये, इसमें वही एनहाइड्रस AlCl3 साथ में HCl गैस है और हीट करेंगे। इसमें क्या करोगे बेटा? ये बॉन्ड क्लीव कर रहे हैं ना, इस बॉन्ड को यहां लगा देना। क्या बन जाएगा? यहां भी मिथाइल है और यहां मिथाइल, ऐसे करते हैं। हेक्सेन, सेम कंडीशंस, एनहाइड्रस AlCl3 HCl गैस और हीट करने पे एक बार मिथाइल लगा दो सेकेंड कार्बन पे और एक बार मिथाइल लगा दो थर्ड कार्बन पे। ऐसे ब्रांच्ड चेन आइसोमर्स बन जाएंगे। नेमिंग आप खुद कर सकते हो बेटा। ये क्या हेक्सेन है, इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल पेंटेन है, इसका नाम क्या है? 3 मिथाइल पेंटेन। एक्चुअली में ना, अब मैं ये बात शेयर करूंगा तो फिर आगे से आप मैकेनिज्म में ध्यान दोगे नहीं। जितने भी मैकेनिज्म्स है ना, ये हमारी सोच से, साइंटिस्ट ने सहमति से कहा कि ये ऐसे हो सकता है, क्योंकि सब कुछ किसमें हो रहा है? एटॉमिक लेवल पे हो रहा है। जो मैकेनिज्म पास हो गए वो तो आपको बुक मिल जाएंगे। अगर लिखा होता है ये प्रोपोज्ड मैकेनिज्म है, ये भी पास हुआ है। और एनसीईआरटी में तो बहुत ही कम दे रखे मैकेनिज्म। हमने क्यों करो मैकेनिज्म? क्योंकि उसके सारे ना आपको केमिकल रिएक्शन भी साथ साथ याद होता रहे। जितना ध्यान दोगे आप मैकेनिज्म में, उतना अच्छे से रिएक्शन जल्दी याद होगा।
वरना ये सब कुछ हमारी सोच से, वो पास हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो प्रपोज ही तक पास नहीं हुआ है। कर दे रहा। नेक्स्ट है, हमने कौन सा लिखवाया था, कल लिखवा था, हाँ एरोमेटाइजेशन। कपड़ा ज्यादा गीला है। फोर्थ एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। यहां पे नाम से आपको क्या लग रहा है, हाँ एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, किससे, एल्केन से। और वो एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा बनेगा, बेंजीन बनता है और उसके डेरिवेटिव्स, जैसे टॉल्यूइन हो गया, टॉल्यूइन का आईपीसी नेम क्या होता है, मिथाइल बेंजीन हो गया, इथाइल बेंजीन, ऐसे बन जाएंगे। तो कम से कम कितने कार्बन चाहिए इस प्रोसेस के लिए, तो बेंजीन कितने कार्बन का होता है, हाँ तो when 6 to 10 carbon atoms are heated in the presence of suitable catalyst, you have formation of benzene and its derivatives. लिखिए, सेंटेंस लिखो, alkanes containing 6 to 10 carbon atoms, alkanes containing 6 to 10 carbon atoms are converted to benzene and its derivatives at high temperature. At high temperature in the presence of the catalyst, catalyst यूज करते हैं Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड। ये कौन सा है कंपाउंड, मतलब इसका लिखा दो, इसका नाम MO2O3, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। क्या नाम इसका, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। इसका नाम क्या होना चाहिए, सोचो, V2O5। V सिंबल कौन से एलिमेंट का होता है, वेनेडियम। क्या नाम है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम 5 मतलब पेंटाऑक्साइड। तो इन कैटलिस्ट के द्वारा हम एल्केन्स को बेंजीन उसके डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पे। एग्जांपल देखिए, पहले हेक्सेन का लिखते हैं। क्या मैं हेक्सेन को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, है तो हेक्सेन है ना ये, CH3 CH2 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 CH3। कौन से कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, Cr2O3 या फिर NO2O3 या फिर V2O5। कितने पे हीट करते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस पे। आप केल्विन में लिखो, केल्विन में कितना हो जाएगा, 773 केल्विन पे हीट करेंगे। पहले स्टेप में क्या होता है, साइक्लाइजेशन, मतलब साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। मतलब पहले ये साइक्लोएल्केन बनेगा। कैसे होगा, जब इसका एक H और इसका एक H बाहर निकले, कौन सा प्रोसेस निकल सकता है, फ्री रेडिकल से। इसका रेडिकल क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। तो पहला स्टेप कौन सा है, अब इन साइड में एक स्टेप में दे रखा है, दोनों स्टेप करते अलग अलग। ये पहला स्टेप कौन सा है, साइक्लाइजेशन। कौन सा स्टेप है, साइक्लाइजेशन से क्या बनना चाहिए होता है, ये बना साइक्लोहेक्सेन। फर्दर
सेम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और हीट करने पे, चलो मैं एक ही नाम लिख देता हूं, कोई भी एक, Cr2O3 और हीट कर रहे हैं 773 केल्विन पे। अब कौन सा प्रोसेस है? अब है, अच्छा लॉस ऑफ H क्या होता है? हमें क्या करना है, देखो सबके पास एक एक H है ना, दो दो H है बेटा, एक H को बाहर निकालते रहो, किससे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। उसका रेडिकल और ये रेडिकल बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। फिर यहां पे रेडिकल, ये रेडिकल क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। तो इसमें फाइनली कौन सा कंपाउंड बन रहा है? बेंजीन। कितने H बाहर निकालेंगे? कितने H बाहर निकाल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 H आपस में कैसे ले रहेंगे? 3 H2 के फॉर्म में। क्या बन जाएगा? माइनस में 3 H2। पहले स्टेप में क्या निकला था? माइनस में H2। तो कितने H2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकले टोटल? 4। टोटल इस प्रोसेस में 4 डाइहाइड्रल मॉलिक्यूल्स वॉल्व हो रहे हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। ये कौन सा प्रोसेस है? ये डिहाइड्रोजिनेशन। डी मतलब रिमूवल, डिहाइड्रोजिनेशन। ऐसे हेक्सेन से हम बेंजीन बना सकते हैं हाई टेम्परेचर पे। कैटलिस्ट आपने याद कर लिए, कौन कौन से ले सकते हैं? Cr2O3, MO2O3 और B2O5। एक आप ट्राई करो, अगर हेप्टेन लेंगे तो क्या बनेगा? सोचो। हेप्टेन को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, देखने का। ये हेप्टेन है ना, 7 कार्बन का एल्कीन। क्या करना है? इस कार्बन का नहीं, इस कार्बन का एक H और इसका H फ्री रेडिकल से बाहर निकाल दो। यहां क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। वो कौन प्रोसेस है? साइक्लाइजेशन। फिर हर एक कार्बन से एक एक H बाहर निकालते रहो डिहाइड्रोजनेशन से। यहां क्या बनेगा और यहां क्या बनेगा? निकल, हाँ लास्ट बनेगा टॉलुइन। और यहां पर कोई भी एक कैटलिस्ट ले लो, कौन सा ले रहे हैं? Cr2O3 773 केल्विन पे। इसका H और इसका H फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बाहर निकालने के बाद प्रोसेस ऑफ साइक्लाइजेशन से ये कंपाउंड बना। इसका नाम क्या है? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहां मैं नाम लिखता हूं, ये पहले वाला क्या था? ये साइक्लोहेक्सेन है। ये है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। Process continued. Then we have loss of 3 hydrogen molecules. Process of dehydrogenation. Dehydrogenation. And the compound formed will be toluene. Compound is toluene. एक और लिख लो बेटा, ऑक्टेन से करके दिखाओ क्या बनना चाहिए। ऑक्टेन से क्या क्या बन सकते हैं, आप ट्राई करो। इसको सेकंड एग्जांपल कर लो। थर्ड ऑक्टेन। ऑक्टेन को मैं कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? ऐसे, ये है ना। पहला स्टेप तो सब में सेम बनेगा। कौन सा? साइक्लो एल्केन। कौन सा? साइक्लो हेक्सेन का बनता है डेरिवेटिव, वो बनाओ। हाँ, इथाइल साइक्लोहेक्सेन बनेगा पहले स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप में बनते हैं मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। कैसे सोचो एक बार।
यहां दिख रहा है इसमें कैमरा में? रुक गया क्या? दिख रहा है, दिख रहा है। Same conditions. Suppose we have molybdenum oxide, हीट कर रहे हैं 773 केल्विन, 500 डिग्री सेल्सियस पे। पहले स्टेप में बना जो आपने बताया इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब फर्दर हीट करने पे इस कंपाउंड से डिहाइड्रोजनेशन से आपको दिख रहा है कंपाउंड ये बनना चाहिए कौन सा? हाँ, इथाइल साइक्लोहेक्सेन ना, ये बनेगा। कुछ और भी बन सकता है क्या? आपको पता है इतने हाई टेम्परेचर पे कार्बन कार्बन की बॉन्ड क्लीवेज भी होती है, तो ये बॉन्ड टूट सकता है ना, ये बॉन्ड टूटेगा। बेंजीन तो एरोमेटिक स्टेबल है, ये बॉन्ड टूट गया तो इसमें और क्या बन सकता है? ये CH3 यहां जा सकता है, ये CH3 यहां जा सकता है और नीचे जा सकता है। मुझे बताना इसमें और क्या क्या, इनके नाम बता दो। एक तो यहां पे मिथाइल आ गया, एक मेटा पे लगा दो और एक पैरा पे लगा दो। चारों कंपाउंड के नाम बता दो क्या? जहां पे दो मिथाइल हो क्या बोलते हैं सिस्टम में? क्रिसॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिसॉल। तो इसका नाम क्या है? ऑर्थोक्रिसॉल। ये क्या हो जाएगा? मेटाक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल। और ये पैराक्रिसॉल। क्या आप इनके आईयूपीएसी नेम भी लिख सकते हो? क्या होगा? ये फर्स्ट, ये सेकंड। 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। मैं एक का नाम लिख देता हूं, बाकी आप कर लेना। ये है 1,2 आइटम देखे डाइमिथाइल बेंजीन, और ये है इथाइल बेंजीन। कॉमन सिस्टम में भी आईयूपीएसी में इसका नाम एक ही है, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। तो ये है प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस है? एरोमेटिक में कन्वर्ट करें ना, एरोमेटाइजेशन। बस कैटलिस्ट पे ध्यान देना कि कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हीट तो सब में करना पड़ेगा, क्योंकि एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, वो हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन शो करते हैं। चार हो गए, दो रह गए। मैंने सोचा कि हमने एल्कीन स्टार्ट कर दिया है, इसलिए मगर 3 घंटे तो लग जाएंगे एल्कीन्स में। नेक्स्ट क्या है? एक्शन विद स्टीम। कौन सा? पायरोलाइसिस। लास्ट में स्टीम नहीं पा रहे, चलो ठीक है, पहले कर लेते हैं पायरोलाइसिस। कर दो रब।
फिफ्थ प्रॉपर्टी है पायरोलाइसिस। यहां भी क्या करें, हीट कर रहे हैं एल्केन्स को। सुटेबल कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, सिलिका या एल्यूमिना। सिलिका क्या होता है, सिलिका होता है बेटा SiO2। इसका केमिकल नेम क्या होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जो हम रेती यूज करते हैं ना, बालू रेती, वो यही होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और एल्यूमिना क्या होता है, एल्यूमिना होता है Al2O3। इसका नाम क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इनके प्रेजेंस में पायरोलाइसिस, जिसका एक और नाम क्या है, क्रैकिंग, जो क्रैकिंग भी कह सकते हैं, इसको फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। ये बायो वाला फ्रेगमेंटेशन नहीं है, हाँ? ये केमिस्ट्री वाला फ्रेगमेंटेशन। मतलब यहां पर कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है। तो हायर एल्केन्स ना लोअर एल्केन्स और एल्कीन्स या एस्टर बन जाता है, टू कन्वर्ट हो रहा है। द कन्वर्जन ऑफ हायर एल्केन्स टू लोअर एल्केन्स एंड एल्कीन्स एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड पायरोलाइसिस या क्रैकिंग या फिर फ्रेगमेंटेशन। हीट करें किसके प्रेजेंस में, Al2O3 या SiO2। एक और यूज कर सकते हैं, कौन से, कैटलिस्ट, पैलेडियम या प्लैटिनम भी। वो कब यूज करते हैं, जब एल्केन के नंबर ना 10 से ज्यादा हो। आपके पास 12 कार्बन का नाम क्या होगा उसका, डूडेकेन। तो डूडेकेन को अगर हीट करते हैं 973 केल्विन पे, डिग्री में कितना हो जाएगा, 700 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो लोअर एल्केन्स और एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पायरोलाइसिस, क्रैकिंग या फिर फ्रेगमेंटेशन। लिखो सेंटेंस लिखते पहले तो, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन्स, इसके तीनों नाम लिख लेना आप, पायरोलाइसिस, क्रैकिंग या फ्रेगमेंटेशन। द थर्मल डिकम्पोजिशन, कंडीशन क्या है इसमें, O2 नहीं होना चाहिए इन एब्सेंस ऑफ एयर। अगर O2 हो तो क्या हो जाएगा, कंबशन हो जाएगा, कंबशन नहीं करवाना, इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट करना है इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन्स in the absence of air, in the absence of air and in the presence of the catalyst and in the presence of the catalyst such as silica, ब्रैकेट में कर लेना SiO2, सिलिका SiLiCa, सिलिका, और एल्यूमिना, इसे कहते हैं एल्यूमिना, ब्रैकेट में कर लेना Al2O3, टू गिव लोअर एल्केन्स, to give lower alkanes, alkene and dihydrogen, मतलब H2 and dihydrogen is called पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन्स या फिर क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स, और इसको हम फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं, इज कॉल्ड पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन्स।
नेक्स्ट लाइन से कर लो, इट ऑल्सो ऑकर्स बाय फ्री रेडिकल रिएक्शन। बस ये लिखा है एनसीईआरटी में, इट ऑकर्स बाय फ्री रेडिकल रिएक्शन से। एग्जाम्पल देखिए बेटा, ब्यूटेन ले रहे हैं बेटा, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2CH2CH3। कैटलिस्ट क्या क्या ले सकते हैं बताना, कैटलिस्ट ले सकते हैं या तो सिलिका, सिलिका क्या होता है SiO2, क्या क्या ले सकते हैं, एल्यूमिना, एल्यूमिना क्या होता है Al2O3। कितने हीट करें 500 डिग्री सेल्सियस पे, कितना वही सेम 773 केल्विन पे, ये भी सेम 773, 700 से 800 केल्विन के बीच यूज करते हैं बेटा। एक में क्या करना, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो और एक में ये वाला बॉन्ड तोड़ दो और बताओ कंपाउंड इसमें क्या क्या बनने की संभावना है। फ्रेगमेंटेशन हो रहा है ना, बॉन्ड टूट रहा है, कौन से मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल से। अगर बेटा ये बॉन्ड क्लीव हुआ, इसका से लिखा दोबारा से, आप बस समझ लो, आप बस ऊपर वाला लिख लेना। अगर बेटा ये बॉन्ड क्लीव हो रहा है, इसके पास क्या बना, एक तो बना CH रेडिकल और क्या बना CH3CH2CH2 रेडिकल। अब इसका एक H और टूट गया, किससे, होमोलैटिक क्लीवेज से, एक रेडिकल कार्बन के पास, एक रेडिकल H के पास। ये H बॉन्ड किससे बनाएगा, CH3 से, और इसके बीच में रेडिकल रेडिकल में बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इसमें कंपाउंड कौन कौन बनेगा के चांसेस है, एक तो क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, दूसरा क्या बनेगा CH4। अब मैंने ये वाला बॉन्ड क्लीव किया है, इसमें ये वाला बॉन्ड क्लीव करना, अब बताओ कंपाउंड क्या बनेगा, दिखाओ करके दिखाओ। एक तो ये बनेगा ना ये रेडिकल, दूसरा भी सेम ऐसा रेडिकल बनेगा CH3CH2CH3। अब क्या करोगे, इसका एक H को क्लीव कर दो होमोलाइसिस से, एक रेडिकल इसके पास, एक रेडिकल इसके पास। ये H कमेंट किससे करेगा, इस C से, और ये रेडिकल बीच में बॉन्ड कैसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ कंपाउंड कौन से बन सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाँ CH3। तो मिक्सर्स बन रहे हैं लोअर एल्केन्स और एल्कीन्स के। इस पे ना एक कैटलिस्ट और लिख लो जहां पे CH बॉन्ड टूटता है, वो किससे बनता है, Cr2O3 से, 773 केल्विन। ये हमने और कहां यूज किया था, ध्यान देना, ये कहते और कहां पे आया, कभी आया था, कहां पे, एरोमेटाइजेशन में, वो 6 और मोर में था। अगर 6 से कम कार्बन है, वही कौन सा बॉन्ड तोड़ता है, ये CH बॉन्ड तोड़ता है ना। क्या करवाता है, पहले साइक्लाइजेशन, फिर डिहाइड्रोजनेशन, ये CH बॉन्ड तोड़ता है। तो देखो अगर बेटा आपके पास ये CH, इसके पास एक H यहां पे CH2 और H, देखो बेटा यहाँ पे अगर बेटा इसने ये वाला CH बॉन्ड तोड़ा, एक रेडिकल इस H के पास, एक रेडिकल इस कार्बन के पास, सेम एक रेडिकल इस कार्बन के पास, एक रेडिकल इस H के पास, ये H और H क्या बन जाएगा, डाइहाइड्रोजन। और साथ में और क्या बन रहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। तो यहां पर एल्कीन साथ में डाइहाइड्रोजन बन सकता है। तो CC बॉन्ड तोड़ना हो तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करोगे, ये है CC बॉन्ड क्लीवेज के लिए, कौन से, सिलिका और एल्यूमिना। ये CC बॉन्ड तोड़ा, इसको आप नोट कर लेना है,
ये CC बॉन्ड तोड़ रहा है, ये कौन सा बॉन्ड तोड़ रहा है? हाँ, ये CH बॉन्ड तोड़ रहा है बेटा। तो CH बॉन्ड तोड़ने पे आपके पास यहां पर डाई हाइड्रोजन भी बनते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में H2 गैस। इसमें कोई दिक्कत बेटा समझ रहा है? ये अगर CC बॉन्ड तोड़ना हो तो फ्री रेडिकल से क्या बन सकते हैं? एल्केन्स और एल्कीन्स। अगर CH बॉन्ड तोड़ना हो तो एल्कीन और डाइहाइड्रोजन। इसमें जो एग्जांपल दे रखा है ना एनसीईआरटी में, वो तो आपको थोड़ा याद ही करना पड़ेगा। एक और लिख लो आप एग्जांपल जो एनसीईआरटी का है, वो लिखते हैं। ये कुछ समझाने के लिए था। हेक्सेन क्या होता है? C6H14, C6H14। इसको हीट कर रहे हैं 773 केल्विन पे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन कौन से यूज कर सकते हैं? सिलिका, एल्यूमिना और तीसरा क्या था? क्रोमियम ऑक्साइड। तो यहां पे बता रहे हैं अगर आपने डाई आयरन उसको रिमूव करना हो तो एल्किन कौन सा बनेगा? 6 कार्बन का ही, जैसे इसमें बन रहा था, ये 4 कार्बन का एल्किन बन रहा है, साथ में जो है एसपी गैस बन रहा है। यहां क्या बनेगा? C6H12 प्लस में H2। अच्छा, और क्या बन सकते हैं? ये ऐसे हम देखो 6 कार्बन का बेटा जी है। एक तो आप ये बॉन्ड तोड़ सकते हो, एक आप बेटा ये बॉन्ड तोड़ सकते हो। अगर आप ये बॉन्ड तोड़ रहे हो तो उस केस में बनता है इसमें C2H6 प्लस में C4H8, एक एल्केन एक एल्केन। अगर ये बॉन्ड तोड़ रहे हो बेटा, एक प्रोपेन एक प्रोपेन, इसे क्या बनेगा? C3H8 प्लस में C3H6। ये दे रखा है इसमें, ऐसे है। ठीक है, इसको भी याद कर लेना। हेक्सेन में ये प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। मैकेनिज्म वही है, फ्री रेडिकल वाला सब में। इसमें नोट पॉइंट देकर लिख लो एक सेंटेंस। डूडेकेन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? 12 कार्बन का है ये। एल्कीन फॉर्मूला का CnH2n+2, तो C12H26। डूडेकेन विच इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ केरोसिन ऑयल। कहां मिलता है? लाजमान में केरोसिन ऑयल मिलता है। विच डूडेकेन पे कॉमा लगा देना, हाँ। Which is a constituent of kerosene oil, on heating at 973 Kelvin in the presence of on heating at 973 Kelvin in the presence of, यहां कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे? हमने लिखा थोड़ी देर पहले, प्लैटिनम। हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल भी लिखना। प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल gives a mixture of heptane
एक 7 कार्बन का एल्कीन बन रहा है। कितने बच गए बेटा 12 में से 5, उसका एल्कीन बन जाएगा। हेप्टेन, पेंटीन एंड अदर प्रोडक्ट्स। हेप्टेन, पेंटीन एंड अदर प्रोडक्ट्स। रिएक्शन में लिख के देख लो एक बार। C12H26 कैटलिस्ट आपके पास है, निकल यूज कर सकते हैं, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम। यहां पे थोड़ा और हाई हीट यूज करें टेम्परेचर में 973 केल्विन पे। हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो बेटा? C7H16 और पेंटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H10 प्लस में कर देना अदर प्रोडक्ट्स। ये है पायरोलाइसिस या क्रैकिंग कह सकते हैं, या फिर फ्रेगमेंटेशन, जहां पे हायर एल्केन्स लोअर एल्कीन्स में या H2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर डू डेकेन लेते हैं तो एनसीईआरटी कहता है उसमें क्या बनते हैं? हेप्टेन बन रहा है, पेंटीन बनता है और अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, लास्ट कौन सा रह गया? रिएक्शन विद स्टीम। सिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स में मन बढ़ते रहो कि हमने 6 कौन कौन से के लिए प्रॉपर्टीज बोल रहे हो, एक बार पीछे चेक कर लो कि ये 6 प्रॉपर्टीज है। रिएक्शन विद स्टीम, ये सिर्फ मीथेन के लिए है। मीथेन का रिएक्शन करें स्टीम। स्टीम क्या होता है? वहां आपके देखो, मीथेन रिएक्ट विद द स्टीम। मीथेन रिएक्ट्स विद मीथेन M रिएक्ट्स विद स्टीम एट 1000 डिग्री, कितना केल्विन में? एट 1273 केल्विन in the presence of nickel catalyst। हीट तो सब में करना पड़ेगा, ये मीथेन का रिएक्शन। हाँ, in the presence of nickel catalyst to form CO and H2। नाम क्या है इनके? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। This method is used for the industrial preparation of H2 gas। इंडस्ट्री में ऐसे बनाते हैं H2 गैस को। For the industrial preparation of dihydrogen gas। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। क्या आप रिएक्शन लिख सकते हो? मीथेन क्या होता है बेटा जी बोलो? CH4। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। कितने टेम्परेचर पे? स्टीम क्या होता है? स्टीम प्लस में H2। दोनों किस फॉर्म में? मीथेन भी गैसियस है, स्टीम वाटर भी गैसियस स्टेट में है। टेम्परेचर कितना ले रहे हैं? 1273 केल्विन। कैटलिस्ट कौन सा है? निकल सरफेस पे होगा। ये कंपाउंड बनते हैं CO गैसियस प्लस में डाइहाइड्रोजन मतलब H2 गैसियस। बैलेंस करने के लिए यहां पे हम 3 लगा सकते हैं, 3 डाइहाइड्रोजन। ये जो मिक्सचर है ना CO और H2 का, इसको कहते हैं हम सिन गैस। लिख लो, इसको कहते हैं मिक्सचर को कहते हैं सिन गैस।
इसको हम वाटर गैस भी कह देते हैं, इसको हम वाटर गैस भी कह देते हैं बेटा। इसका नाम सिन गैस क्यों पड़ा? क्योंकि ये हेल्पफुल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स। दिस मिक्सचर ऑफ CO and H2 is used for synthesis of many compounds like methanol, methanol, etc. इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सिंथेसिस से सिन गैस। इसको हम वाटर गैस भी कहते हैं। तो ये है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। एक बार मुझे हेडिंग दोहरा दो, कौन कौन से किया हमने। पहला किया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने 3 किए हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। दूसरा किया था ऑक्सीडेशन, जिसमें 4 मेथड किए हमने। कंप्लीट कंबशन, ऑक्सीडेशन कंबशन होता है। दूसरा पार्शियल ऑक्सीडेशन या पार्शियल कंबशन भी कह सकते हैं। कंट्रोल ऑक्सीडेशन, केमिकल ऑक्सीडेशन। फिर हमने आज किया स्टार्ट आइसोमेराइजेशन, जहां पे हम स्ट्रेट चेन एल्केन्स को ब्रांच चेन एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार याद करना कौन सा कैटेलिस्ट था उसमें। हाँ, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl। ठीक है। फोर्थ कौन सा किया? यहां भी हीट करते हैं हाई टेम्परेचर में। यहां कैटेलिस्ट कौन सा है? Cr2O3 MO2O3 B2O5। यहां कंडीशन क्या है? एल्केन्स कितने कार्बन होने चाहिए? 6 से 8 के बीच में, है ना। अगर 6 का है तो बनता है बेंजीन, 7 का बनता है टॉलुइन, 8 का है तो उसमें बनता है इथाइल बेंजीन और जाइलिन का आइसोमर्स है, और तो मेटा पैराचाइलिन। फिर तुमने कौन सा किया? पायरोलाइसिस या क्रैकिंग या फिर फ्रेगमेंटेशन। यहां पे हायर एल्केन्स को हम लोअर एल्केन या एल्कीन यानी और एल्केन्स और साथ में H2 गैस में कन्वर्ट करते हैं। यहां पे कैटलिस्ट कौन से हैं? यहां पे कैटलिस्ट है सिलिका, एल्यूमिना, और ये कब है? जब C बॉन्ड तोड़ते हैं तब, और CH बॉन्ड तोड़ते हैं तो Cr2O3 यूज कर लें। और एक जो एनसीईआरटी में वो करना है कौन सा? डूडेकेन वाला, कि डूडेकेन को हीट करते हैं निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में इतने 700 डिग्री सेल्सियस पे, तो हेप्टेन, पेंटीन और बाकी प्रोडक्ट्स बनेंगे। और लास्ट कौन सा है? मीथेन का रिएक्शन विद स्टीम क्या बनता है? सिन गैस। हाँ, CO प्लस में H2, इसको हम वाटर गैस भी कहते हैं। इसमें कैटलिस्ट है निकल और 1273 केल्विन पे हीट करेंगे। तो कंसेप्ट के साथ साथ आपको थोड़ा डाटा भी याद करना पड़ेगा कि कहां कहां पे कौन सा कैटलिस्ट है और कितना टेम्परेचर हीट करना है। ठीक है, इसलिए कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैथ्स की तरह होती है। जितना प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, लिख लिख के देखोगे, जब भी रिविजन करना हो रफ कॉपी लेके बैठना है, लिख लिख के देखो। क्योंकि हम ऐसे ऊपर पढ़ लेते हैं और जब टेस्ट होता है तो भूल जाते हैं क्या रिएक्शन था। प्लस टू में दिक्कत यही होती है, अगर बच्चे ध्यान देते नहीं है, ऊपर से पढ़ लेते हैं, लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो जब भी मैं टेस्ट लेता हूं तो कहते हैं सर हम भूल गए रिएक्शन सारे आते हैं सुबह तक, तो टेस्ट में भूल गए। क्यों? लिख के प्रैक्टिस नहीं करते। हाँ, यहाँ ये गलती हो जाए तो ठीक है, आगे दिक्कत नहीं होनी चाहिए एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में कहीं वहां पे सारा बोल एल्किन स्टार्ट कर दे आगे। सर बोलेंगे आपने क्लास नहीं छोड़ दिया। क्योंकि बच्चे ऑनलाइन वीडियो कम ही देखते हैं, क्लास में बैठ गए तो अलग बात है, वीडियो देखते। नींद आ रही है अभी? चलो तरफ सर से कहते ना कि एल्केन्स पूरा हो गया था, एल्केन स्टार्ट करना था हमने, तो कल right